1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। फिलिपियंस 1 चैप्टर 1 वर्स से 30 वर्स, आइज़ाया 33 चैप्टर 34 चैप्टर हम पढ़ेंगे। हिंदी में ये अध्याय ऐसे है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 1 वचन से 30 वचन, यशायाह की भविष्यवाणी 33 अध्याय 34 अध्याय हम पढ़ेंगे। ये 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में BSI बाइबल में से। फिलिपियंस 1 चैप्टर 1 वर्स से 30 वर्स। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, तेरे आत्मा के बिना असंभव है खुदा कि हम ये वचन का एक टुकड़ा भी समझ पाए। असंभव है, ना बल से ना ताकत से, तेरे आत्मा ही के द्वारा वचनों को हमारे मन में, जहन में उतार कर लेकर आ, हमारे चित्त में उसको फिट एंड फिक्स कर, हमें व्यवस्थित कर, ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। फिलिपियों की पत्री, फिलिपियंस इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे हम। फर्स्ट चैप्टर 1 वर्स से 30 वर्स तक पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। Paul's thankfulness and prayer to God, his readiness to glorify Christ. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi with the bishops and deacons, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you all, making request with joy for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ, even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel ye all are partakers of my grace. Hallelujah. For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places, and many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ even of envy and strife, and some also of good will. The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. What then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death.
For to me to live in is Christ and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I vote not. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake, having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me. हम ये वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 1 वचन से 30 वचन तक। पहले वचन से, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पौलुस की प्रार्थना और धन्यवाद। 3 वचन से आगे, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। पौलुस की कैद से सुसमाचार की उन्नति। 12 वचन से आगे, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन के सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है,
और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। जीवित रहना मसीह है। 19 वचन से आगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसी ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किस को चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तो भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया। ये हमारे मिशनरी काम का वचन है, 27 वचन। ओके, हमको कभी किसी के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं बोला था। सब ने अपनी अपनी खुद जिम्मेदारी उठाना है। जब भी हमारे लीडर्स हमको मुलाकात करते थे, तो हमको ये वचन के आधार से देखेंगे। वो बस उनको पूरा विश्वास है कि ये वचन से हम अलग नहीं होंगे, हम निश्चित परमेश्वर के काम में लगे हुए हैं। तो हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं था, कोई भी बॉस नहीं था। हमारे लीडर्स भी हमारे बॉस नहीं थे। उनको इतना, हम एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा परमेश्वर के आत्मा का रखा कि हमको पता है कि परमेश्वर का आत्मा अगर हमारा चरित्र नहीं संभाल सकता है, मसीही चरित्र, तो हम काबिल नहीं है मिशनरी काम करने के लिए। ओके, तो इसके लिए हम प्रूव हो गए कि हम काबिल हैं मिशनरी काम के लिए। प्रूव कर दिया परमेश्वर ने कि हम काबिल हैं। आमीन। हमको आज भी याद नहीं कोई हमारा बॉस था मिशनरी कामों में। आज भी हम किसी को, लीडर्स को ये नहीं देखते कि वो कुछ तो हमारे कुछ ऊंचे पद का, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारी काबिलियत परमेश्वर के आत्मा ने संभाल के रखा और हमको प्रूव किया कि हम उस काम के योग्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से है मसीही जीवन में। बहुत आसान है मसीही जीवन अगर काबिलियत में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है तो। 28 वचन, लेकिन अगर पवित्र आत्मा सहायता नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आप गड़बड़ी में हो जाते हैं। ओके, लेकिन डरना नहीं है, आपकी मसीहता अब कोई छीन नहीं सकता है, ये बहुत गारंटी रहता है। हमारा आत्मविश्वास मसीहत का इसी के कारण मिशनरी काम में इतना मजबूत है, क्योंकि हमको कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है, कोई चेंज नहीं कर सकता है। कोई शक्ति, कोई प्रधानता, कोई आत्माएं, कोई दुष्टता, कोई भी प्रकार का गिरा हुआ कोई भी ये कुछ भी जो गिरी हुई बात होती है, कुछ भी हमको बदल नहीं सकता है मसीहत में से। हमारी मसीहत का जड़ पवित्र आत्मा ने पकड़ रखा है। हालेलुया, उसको कोई डगमगा नहीं सकता है। हालेलुया। इसके लिए आंधी आएगा, तूफान आएंगे, हमारा चरित्र थोड़ा समय के लिए कुछ हट गया जैसे दिख सकता है, लड़खड़ा जैसा दिख सकता है, लेकिन जड़ को कोई उखाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। तो इसके लिए जब हम मिशनरी काम करते हैं और वचन को बोते हैं, हम डरते नहीं है कि हमने बोया है आगे क्या होगा इनका, नहीं, जड़ ले लिया है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा विश्वास योग्य है, हम उसके ऊपर टेक लेंगे
तो हम देखेंगे कि फसल जड़ के अंदर से जड़ मजबूत कर रही है और उसका पानी जीवन का स्रोत वो इंसानों में जिसमें हमने बीज बोया है वो काम करना शुरू हो चुका है। वो कहाँ पर उसको लेके जाके फल में दिखाएगा हम बोल नहीं सकेंगे, लेकिन काम हो गया है। हालेलुया। 28 वचन, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ।